ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تاریخ کے ہولناک سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی مچی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے ملک میں ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ فوری کام شروع کرنے کے لیے وزیر منصوبہ بندی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ وفاق اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ صوبوں کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، واضح کر دیا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے تنہا نہیں نمٹ سکتے، عالمی برادری کو میدان میں آنا ہوگا۔ سیلاب نے بڑی تباہی مچائی ہے، اس حوالے سے کابینہ مشاورت کے بعد کلائمیٹ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی اس کا اعلان کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہم کر رہے ہیں جناب احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں، جس میں متعلقہ وزراء اور متعلقہ سیکرٹریز ہوں گے اور صوبوں کے 4 چیف سیکرٹریز ہوں گے، تاکہ اس کے اوپر فی الفور کام شروع کیا جا سکے۔ ہم ایک میٹنگ بلائیں گے ایپیکس لیول پہ، جس میں 4 وزراء اعلیٰ اور چیف منسٹرز اور متعلقہ آفیسرز ہوں گے، تاکہ ایک پالیسی بنائے۔ زراعت میں جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی باقاعدہ میں نے ٹاسک لگا دیا، انشاءاللہ ارلی نیکسٹ ویک سامنے آ جائے گا کہ آپ کی چاول، آپ کا جو میز ہے، آپ کا جو گنا ہے، اس میں کیا نقصانات ہوئے ہیں، اس کی باقاعدہ ایک اسیسمنٹ ہو رہی ہے۔ وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کابینہ میں بھی لے کے آؤں گا، اور ایک ہم اسپیشل میٹنگ بلا رہے ہیں، اس میں بھی اس کو انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے۔ تباہ کاری جو ہے مل کر ہی ہم اس نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ اس میں وفاق اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ڈالیں گے انشاءاللہ، لیکن اس میں صوبوں کو بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ جلال پور پیر والا میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، بستیوں کی بستیاں ڈوب گئیں، کئی بند ملیا میٹ ہو گئے۔ نواحی بستی بہارا اور پھرانی کا بند ٹوٹنے سے درجنوں آبادیاں ڈوب گئیں، ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ۔ دریائے چناب میں سیلاب کا زور ٹوٹنے لگا۔ ملتان کے اکبر اور شیرشاہ بند پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ مؤخر۔ لیاقت پور میں بستی گل محمد کے درجنوں مکانات گر گئے۔ بہاولپور اور بہاول نگر میں بھی بڑا نقصان ہوا، جہاں 2.5 لاکھ ایکڑ پر زیر کاشت رقبہ تباہ ہو گیا۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں جلال پور پیروالا سے، جہاں پر شہر کو بچانے کے لیے گیلانی بند توڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جبکہ دریائے چناب اور ستلج سے آنے والے ریلے اب تک 60 سے زائد موضوعات کا نقشہ بدل چکے ہیں۔ متاثرین اپنے پیاروں کی زندگیاں بچانے کے لیے پریشان نظر آ رہے ہیں، اور یہاں بڑی خبر یہ ہے کہ خان بیلا میں ریسکیو کرتے ہوئے کشتی ڈوب گئی ہے۔ کشتی میں 20 افراد سوار تھے، متعدد افراد کو بچا لیا گیا ہے، دیگر کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے مکرم خان نے ہمیں جوائن کیا۔ مکرم، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، جلال پور پیر والا میں جو ہے آپ سے کچھ دیر پہلے جو افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے، جس میں کشتی ڈوب گئی ہے، خان بیلا روڈ پر ریسکیو کرتے ہوئے کشتی ڈوبی ہے، اور جس میں 20 افراد جو ہے وہ سوار تھے۔ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور اطلاعات جو ہیں اب تک یہ سامنے آ رہی ہیں کہ جتنے بھی اس میں سوار تھے ان کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا اور ان کی تلاش کی گئی، جس کے بعد ان کو بحفاظت جو ہے وہ نکال لیا گیا۔ یہ پولیس حکام کا کہنا ہے۔ اس میں جو ہے ایک 20 سال کی بچی ہے، جس کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو رہی ہے، اور اس کو جو ہے گورنمنٹ مشتاق لان تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جلال پور پیر والا میں جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے مکرم، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دکھ کی گھڑی میں سیلاب متاثرین سے ملنے جلال پور پیر والا پہنچی۔ سیلاب متاثرین کو خود کھانا پیش کیا اور نقصان کے ازالے کا وعدہ بھی کیا۔ سیلاب متاثرین کی داد رسی کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملتان اور جلال پور پیر والا کا فضائی جائزہ۔ مریم نواز نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا مشاہدہ کیا۔ جلال پور پیر والا میں فلڈ ریلیف کیمپ آمد، سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، خواتین میں کھانا تقسیم کیا اور ان کے مسائل سنے۔ کیسے ہوا یہ واقعہ؟ الگ تھا؟ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ کدھر؟ ادھر جلال پور میں؟ اچھا، کیا ہوا تھا؟ یہ آپ کا نا کسی کو دینا مت، رشتہ داروں کو مت دینا، یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ مریم نواز کا عنایت پور روڈ پر بند بنانے والے مقامی افراد سے خطاب، کہا جلال پور کے گرد 8 کلومیٹر طویل سپر بند بنائیں جس سے دوبارہ سیلاب نہیں آئے گا۔ کہا متاثرین کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا، بڑے گھر کے لیے 10 لاکھ، چھوٹے گھر اور فی جانور نقصان پر 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ محمد نواز شریف کی بیٹی آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں، ایک کا نقصان ہم پورا کریں گے۔ جانی نقصان ہوئے 10 لاکھ روپیہ ہم دیں گے، اس کا جس کا گھر گرا ہے اس کو بھی 10 لاکھ روپیہ ملے گا، اور جس کا 1 کمرہ 2 کمرہ گرا ہے، آدھا گھر گرا ہے، اس کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا، اور جس کا کوئی جانور
अगर बह गया है तो उसको 5 लाख रुपया बड़े जानवर का मिलेगा, 50,000 छोटे जानवर का मिलेगा। वजीर आला पंजाब का कहना था कि मुश्किल वक्त में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर मुतासरीन ने मरियम नवाज के हक में नारे भी लगाए। भूखे प्यासे सैलाब मुतासरीन पर कश्ती माफिया की अलगार, रेस्क्यू करने के लाखों रुपए मांगने लगे। समा जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। खबर नशर होने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का फौरी एक्शन, कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 200 कश्तियां और 2 हेलीकॉप्टर्स भेजने की भी हिदायत कर दी। मुकरम खान की रिपोर्ट। 5 लाख रुपया मंगते हैं। 2.5 लाख से 3.5 कपड़े ही गानी सारे लोड गए। लोग पहले से डूबे हुए हैं तो ये पैसे 50 लाख कहाँ से लाएं? लुट गए, सैलाब सब कुछ बहा ले गया, तन पर कपड़े ही गनीमत। अब क्या जिगर गुर्दा बेचें? सैलाब जदगान पानी के रेले से निकले तो कश्ती माफिया मुंह फाड़ कर खड़ा हो गया। अपने प्यारों को बचाने और डूब कर जाँ बहक होने वालों की लाशें निकालने के लिए लाखों रुपए मांगे जाने लगे। समा ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। 2 लाख 1,70,000 से ऊपर पैसे डिमांड करें। खुदारा ये ऑपरेशन हेलीकॉप्टर मंगवाए, कोई हमारी आर्मी है, पूरा मुल्क है। इधर जलालपुर में मैदान जंग बना हुआ है, लोग 3 दरियाओं का पानी यहाँ इकट्ठा है। हमारे 25 अजीज हैं मौजूदा राहपुर में पानी में फंसे हुए हैं और वो भूखे और प्यासे बैठे हैं। वो छत के ऊपर अपना वक्त गुजार रहे हैं। हुकूमत से दर्दमाना अपील है कि हमारी जिंदगियां बचाएं, हमारी जानें बचाएं। सिर्फ जलालपुर पीरवाला ही नहीं, अहमदपुर शर्किया और लियाकतपुर में भी पहले से लुटे पुटे मुतासरीन की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। 2 दिन से हम नंबर लिखवाए हैं, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। हम 2 दिन से यहाँ भाग रहे हैं जलालपुर में, ना हमने खाना खाया ना पिया। माल मवेशी है, वो कह रहे हैं आपके 2 भैंस हैं तो एक हमें दे दो, एक आप रख लो। कश्ती वाले कह रहे हैं एक बंदे का 30,000 35,000 दो, हम कहाँ से लाए? समा एक बार फिर सैलाब मुतासरीन की आवाज बना। खबर नशर हुई तो जलालपुर के दौरे पर गयी वजीर आला मरियम नवाज ने फौरी एक्शन लेते हुए कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ये प्राइवेट लोग जो इस वक्त इसको एक्सप्लॉइट करके और इस सिचुएशन को और वो लोगों को लूट रहे हैं, इसके ऊपर क्रैकडाउन का हुक्म वजीर आला पंजाब ने दे दिया है और अभी एक्शन शुरू हो जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जानी नुकसान बचाना है और इसके लिए तकरीबन 200 बोट्स, अभी वजीर आला पंजाब ने आने से पहले रात को भी 100 बोट्स भेजी, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने 100 बोट्स और बेड़े जो हैं वो डिफरेंट जहाँ ऊंचे इलाके इस वक्त के अराउंड हैं जलालपुर के, उनका भी ऑर्डर दे दिया। वजीर आला पंजाब ने सैलाब जदगान के लिए मजीद आसानियाँ पैदा करने की भी हिदायत कर दी। कराची में तेज बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग, मुख्तलिफ इलाके पानी पानी हो गए। नदी नालों में तुग़यानी बरकरार, करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब, गाड़ियां फंस गईं। शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा बह गया। गडाब टाउन में बहने वाली गाड़ी से खातून समेत 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। कोरंगी नदी में फंसे 2 अफराद को बचा लिया गया। पाक फौज की टीमों ने सुपर हाईवे के अतराफ फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रिपोर्ट करेंगे मोनिस अहमद। कराची में बारिशों के बाद सूरत हाल खतरनाक, गली मोहल्ले पानी पानी, बेशतर शाहराहें डूब गईं। 3 हट्टी के करीब सड़क बैठ गई। सरजानी टाउन का बुरा हाल, 4 के चौरंगी से सरजानी जाना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। मलीर और लियारी नदी में तुग़यानी बरकरार, खड्डो डैम भरने से लठ नदी का पानी सादी टाउन और सादी गार्डन में अब भी मौजूद। पाक फौज की टीमों ने लोगों को रेस्क्यू किया। मलीर नदी भी बेकाबू, कोरंगी कॉजवे ज़ेर-ए-आब आ गई। जाम सादिक पुल के नीचे हैवी मशीनरी और कंटेनर्स डूब गए। पानी का तेज बहाव हाई टेंशन पोल की बुनियादों से मिट्टी बहा ले गया। सुपर हाईवे गडाब नदी में डूबने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गयी। कोरंगी नदी में फंसे 2 अफराद को बचा लिया गया। 55 अरब रुपए का सिंध हुकूमत का मंसूबा मली नदी का तेज बहाव बर्दाश्त न कर सका। जाम गोट के मुकाम पर शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा बह गया। वजीर आला सिंध ने मुतासरा मुकाम का दौरा किया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी भी मौके पर पहुँचे। कहा हुकूमत ने स्पिल वेस्ट पर मिट्टी डालकर अरबों रुपए बर्बाद कर दिए। इमीडिएट डिमांड ये होगी, ये जो इसका पीडी है उसको फिलफौर मुअत्तल किया जाए, क्योंकि उसको ये नहीं पता है, उसने रूट वेरीफाई नहीं किया है कि यहाँ के आप इससे पीछे चले जाए इसी रूट से। माइनियाड़ी के मकाम पे ब्रिज तामीर किया हुआ है। जाम गोट, मेमन गोट, इन पे ब्रिज का तामीर करना भूल गए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल ताउन की हिदायत। कहा मुश्किल में घिरे लोगों को फौरी रेस्क्यू किया जाए। मुतासरा खानदानों की इमदाद और बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम भी उठाए जाएं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। मोनिस अहमद की हमने रिपोर्ट आपको दिखाई है। मोनिस से मजीद जानेंगे कि कराची की मलीर नदी में जो
कादियानी है, इस वक्त क्या सिचुएशन है? मोनस बताएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल मलिर नदी में पानी की सतह में इजाफा होने के बाद कोरंगी कॉजवे ज़ेर आब आ गई है। मैं इस वक्त यहीं से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे अक़ब में ये बैरियर्स लगे नज़र आ रहे हैं और इससे पीछे जो सड़क है मुकम्मल तौर पर उसमें पानी नज़र आ रहा है। इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने 2 मकामात पे बैरियर्स लगा के इनको बंद कर दिया है, ताकि जो एडवेंचर के शौकीन अफराद, माजी में हमने देखा है कि यहाँ पे जाने की कोशिश करते थे और कई हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं। अब मुकम्मल तौर पर शाहराह को बंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि जब तक यहाँ से पानी खत्म नहीं हो जाता, यहाँ पे ट्रैफिक के लिए इस शाहराह को नहीं खोला जाएगा। जो ट्रैफिक है उसको मुतबादिल रास्तों पे डाइवर्ट किया जा रहा है। न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस मौजूद है बल्कि इलाकाई पुलिस भी मौजूद है, ताकि लोगों को जो है रोका जा सके यहाँ पे जाने के लिए। आपका शुक्रिया मोहसिन। सुपर फ्लड की तैयारी की थी। सिंध में 6.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आने की उम्मीद नहीं। शाहराह भुट्टो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ जेर तामीर हिस्से में शिकाफ पड़ा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू कहा, ओपोजिशन मदद नहीं कर सकती तो अफवाहें फैलाकर लोगों को परेशान न करें। हम वही 5.5 या 6 लाख से ज्यादा पानी अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हमने एक सुपर फ्लड की तैयारी की थी। अपनी सुपर फ्लड हम क्लासिफाई करते हैं 900,000 क्यूसिक्स। जो 9 लाख से ऊपर का एक एक्सपेक्टेशन थी वो अल्लाह करेगा कि नहीं आएगा। शाहराह भुट्टो उसको हम कयूमाबाद से लेके शाहराह फैसल तक कंप्लीट कर चुके हैं, वो बिल्कुल ठीक है। उससे आगे अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे जब मलिर नदी में पानी बढ़ा है आज, तो वहाँ पे एक ब्रीच आया है उसके अंदर। सुबह से सोशल मीडिया ने जो बातें की और मुझे बड़ी अफसोस हुआ है कि हमारे कुछ ऑपोजिशन के सूबाई असेंबली के मेंबरान ने बातें की उसके ऊपर विदाउट नोइंग द डिटेल्स कि ये शाहराह भुट्टो बह गई। इस वक्त में खास तौर पे जब मुल्क एक मुश्किल से गुजर रहा है, तो ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों के अंदर इस किस्म की अफवाहें फैला के उनको और परेशान ना करें। भारत आबीजारी हद से बाज न आया। दरिया सतलुज में मुसलसल चौथे रोज भी पानी छोड़ दिया। सरगोधा के इलाके मिडरांजा में गुजरे सैलाब ने 40 से ज्यादा देहात में तबाही मचा दी है। दरिया सतलुज में इस वक्त 1,95,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। मच्छरों के काटने से बच्चे बीमार होने लगे हैं। मोहम्मद अशफाक महर इस वक्त दरिया पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। अशफाक, क्या सूरत हाल है यहाँ की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए सतलुज पर मौजूद हूँ। दरियाए सतलुज में इस वक्त 1,95,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। पिछले 2 दिन से पानी के बहाव में 1,30,000 क्यूसेक की कमी वाक़या हुई है, लेकिन कमी होने के बावजूद लोगों की जो मुश्किलात हैं वैसे की वैसे हैं। लोगों के बच्चे बीमार हो रहे हैं। मच्छर काटने की वजह से जो उनके बच्चों का बुरा हाल है, उनके जानवरों का जो चारा है वो पानी की लपेट में है, बल्कि पानी ने उनको तबाह कर दिया है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। कई घर जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। लोग अपनी फैमिली को लेकर अभी भी ऊंचे टेलों पर बैठे हुए हैं। उनके जानवर भूखे हैं। जानवरों के लिए जो सैलज है, जो उनके लिए बाकी जो चारा है वो डबल कीमत पर सेल किया जा रहा है। पंजाब में तारीख के सबसे बड़े सैलाब की तारीखी तबाहकारियां। मुंह जोर सैलाबी रेलों से 15 लाख एकड़ ज़राई रकबा मुतासिर हुआ है। चावल की 60% फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ज़राए वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के अदाद शुमार के मुताबिक गन्ने की 30% और कपास की 35% फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। फैसलाबाद में 3 लाख एकड़ जमीन ज़ेरे आब आई। गुजरात और गुजरावाला में 2 लाख एकड़ ज़राई रकबा मुतासिर हुआ है। बहावलपुर की बात की जाए तो 1,30,000 एकड़ पे खड़ी फसलें यहां पर बर्बाद हुई हैं। साहिवाल में 1,45,000 एकड़ जमीन सैलाब की लपेट में आई है। लाहौर की बात की जाए तो 99,000 एकड़ पर फसलों को नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। पाकिस्तान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए अहम संगे मील उबूर। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। ड्रोन 200 किलोग्राम तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन फौरी तौर पर मुल्तान भिजवाने की हिदायत की है। जनूबी पंजाब भिजवाने से पहले सिविल डिफेंस ने दरियाए रावी पर ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट्स मुकम्मल की। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने 10 मजीद एयरलिफ्ट ड्रोन की खरीदारी की हिदायत करते हुए कहा, पाकिस्तान में ये अपनी तर्ज की पहली इमरजेंसी एयरलिफ्ट ड्रोन सर्विस है। अब नाकाबिले रसाई मकामात पर फंसे इंसानों को बचाया जा सकेगा। पंजाब से आने वाले सैलाबी रैले गुड्डू बैराज से गुजर रहे हैं, जहां पानी की आमद 4,95,000 क्यूसेक है।
इंतजामी की कोशिशों के बावजूद कच्चे के मकीन इनखला के लिए तैयार नहीं। जमील मुगल से तफसीलात जानते हैं। जमील, बताइएगा। जी, पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले इस वक्त गुड्डू बैराज से गुजर रहे हैं। बैराज पर आज सुबह पानी की जो आमद थी 5 लाख क्यूसेक थी और कुछ देर के बाद जो है इस वक्त पानी की जो आमद है वो 4,95,000 क्यूसेक हो गई है। और अब वही रेले जो हैं इस वक्त सखर की तरफ बढ़ रहे हैं। सखर बैराज पर इस वक्त पानी की आमद जो है 4 लाख क्यूसेक है। गुड्डू से सखर तक के जो कच्चे के इलाके के लोग हैं उन्हें इंतजामिया ने बार बार कोशिश की है, ऐलानात भी किए हैं। इंतजामिया वाले बताया जाता है गए भी हैं। डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो इलाका मकीनों के पास जाके उन्होंने इंतजार भी किया है कि लोगों को जो है फौरी तौर पर कैंपों में मुंतकिल किया जाए, ताहम कच्चे के इलाके के लोग आने के लिए तैयार नहीं हैं। जी, आपका बेहद शुक्रिया। बिलावल भुट्टो का लाड़काना के करीब दरिया सिंध पर मोरिया बंद का दौरा, सैलाबी रैली की सूरत हाल का जायजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आकिल अगानी बंद भी आमद, हुकाम से सैलाबी रैलों और बंदों की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। दरिया सिंध में सैलाब ओबाड़ों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। मुतअद्दिद देहात में रेड अलर्ट जारी है। रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए। समा के नुमाइंदे मोहम्मद हारून से तफसीलात हासिल करते हैं। हारून, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त हम रौती कच्चे के इलाके में मौजूद हैं। पंजाब में तबाहकारियों के बाद अब जो सैलाब है वो गुड्डू बैराज के रास्ते सिंध में दाखिल होना शुरू हो चुका है। सिंध में ये पानी दाखिल होने के बाद जो सबसे पहली तहसील है सिंध की उबाड़ो, यहाँ के कई देहात जो है वो ज़ेरे आब आने का खदशा था, जिसके बाद जिला इंतजामिया की जानिब से जिला घोटकी के अंदर 40 से ज्यादा जो रिलीफ कैंप्स हैं वो कायम किए गए थे। 6,000 से ज्यादा लोग जो है वो कच्चे से पक्के की जानिब मुंतकिल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि उन 6,000 लोगों में से कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो अभी तक रिलीफ कैंप पर पहुंचा। और जब मुकामी जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमने ये बात पूछी कि लोग वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, तो उनका कहना था कि वहां से जो 6,000 लोग मुंतकिल हुए हैं वो पक्के पर जो मुकीम उनके रिश्तेदार हैं वो उनके यहाँ चले गए हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि जिला इंतजामिया की जानिब से जो इंतजामात वहां पर किए गए होंगे वो नाकाफी होंगे उनके लिए और वहां पर उनका रहना जो है वो इंतहाई मुश्किल होगा। सो इसलिए वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। आपका शुक्रिया। चीन के कायम मकाम कौंसल जनरल कावकी ने लाहौर में फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। चीन की तरफ से सैलाब मुतासरीन में आटा, चीनी समेत अशाए खुरनोश और साफ पानी तकसीम किया। चीनी हुकाम जिला हुकूमत के तहत रावी किनारे आबादियों में गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने खैर मकदम किया। चीनी हुकाम ने सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया और कहा चीन और पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में एक साथ हैं। जिला हुकाम कुदरती आफत का एहसन अंदाज में सामना कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों की देखभाल हो रही है। चूंग में 2,300 सैलाब मुतासरीन की खिदमत कर रहे हैं।